الحورہ ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذرا الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وسخاوتہم وعطشہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ ان لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صلوات پڑھیں محمد و علیہ۔ عزیزان اسلام، معزز سامعین کرام، جس آئے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، طیب و طاہر کتاب، ایسی کتاب کہ جو علی کے ساتھ ہے اور علی اس کتاب کے ساتھ ہے، اور علی اس کتاب کے ساتھ جستا بھی ہے، سجتا بھی ہے، زیب بھی دیتا ہے، شایان شان بھی ہے۔ اسی لیے قرآن بھی پاک، علی بھی پاک، قرآن بھی طاہر، علی بھی طاہر، قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی، قرآن بھی رہبر، علی بھی رہبر، قرآن بھی نور، علی بھی نور، قرآن بھی صاحب معجزہ، علی بھی صاحب معجزہ، قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر، قرآن میں سورہ رحمان، علی جان رحمان۔ قرآن کی طرف بھی دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا عبادت، قرآن کا بھی سننا عبادت، علی کا ذکر بھی سننا عبادت، قرآن بھی پڑھنا عبادت، علی کا تذکرہ بھی کرنا عبادت۔ علی اور قرآن برابر ہے، مگر ایک فرق ہے کہ آپ قرآن پڑھیں تو عبادت ہے، قرآن سنیں تو عبادت ہے، قرآن دیکھیں تو عبادت ہے، مگر قرآن کرے تو عبادت نہیں ہے، قرآن کرے تو عبادت نہیں ہے، مگر علی کا تذکرہ سنے وہ بھی عبادت، علی کو دیکھے وہ بھی عبادت، علی کا ذکر کرے وہ بھی عبادت، علی علی کرے وہ بھی عبادت۔ علی علی کرے وہ بھی عبادت ہے۔ غور فرمائیے گا، علی کی ذات کیا ہے؟ علی کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، علی کل ایمان ہے، علی شایان شان ہے، علی وارث قرآن ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی وارث منبر ہے، فاتح بدر حنین علی، مالک کونین علی، والد حسنین علی، شوہر بطول علی، داماد رسول علی، بنت اسد کا پھول علی، کعبے کی زینت علی، محراب کی زینت علی، منبر کی زینت علی، مسجد کی زینت علی، اذان کی زینت علی، اقامت کی زینت علی۔ علی کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، علی اس شخصیت کا نام ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علی اس ذات کا نام ہے کہ اگر علی چادر رسالت اوڑھ کر بستر نبوت پر لیٹ جائے تو کفار سمجھے نبی سو رہا ہے، اور اگر چادر ہٹا کر سامنے آ جائے تو نصیری سمجھے خدا نا۔ ہجرت کی راہ جرت حیدر تو دیکھیے، زیر قدم نبی کا بستر تو دیکھیے، جاگا ہوا وفا کا مقدر تو دیکھیے، آ کر سکون قلب پیمبر تو دیکھیے۔ چادر اوڑھ لی تو نبی بن کے سو گئے، دیگیں چمک رہی تھی علی تن کے سو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
अली किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। चादर ओढ़ ले तो नबूवत का धोखा, चादर हटा दी जाए तो खुदाई का धोखा। ये अली की जात है। तवज्जो चाहता हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ ताकि लोग आ जाएं, कोई ये ना कहे फजाइल अली से महरूम हो गए। अभी तो इब्तिदा है, चलना है मेराज पर, फजीलत की मेराज पर चलना है और देखना है कौन मेरे साथ चलता है उस फजीलत की मेराज पे जहां हम जा रहे हैं। तवज्जो चाहता हूँ, अली की अजमत क्या है, अली की फजीलत क्या है। नबी हिजरत करके गए, तवज्जो, नबी हिजरत करके गए, बिस्तरे नबूवत पर अबू तालिब का लाल चैन की नींद सो रहा है, कोई खौफ नहीं, कोई खतर नहीं। क्यों? अबू तालिब का लाल अली है ना। तलवारों से डरे नहीं, अली जा रहे हैं, अली सो रहे हैं। नबी चले गए, गार में पहुंचे। नबी जब गार के अंदर चले गए, तवज्जो, जब गार के अंदर गए तो अल्लाह ने हिफाजत कैसे करवाई अपने हबीब की। किसी इंसान को नहीं भेजा, बशर को नहीं भेजा, एक छोटी सी शय मकड़ी, अल्लाह अकबर, मकड़ी को भेजा और कहा जाओ मेरे हबीब की हिफाजत करो, मेरे हबीब की मदद करो। अल्लाह दिखाना चाहता है, परवरदिगार इतने बशर, इतने पहलवान, जिब्रील को भेज दे, मीकाईल को भेज दे, इस्राइल को भेज दे, और ये मकड़ी को क्यों भेज रहा है? क्या तुझे नहीं मालूम है आ रहे कुफ्फार, और हमेशा मेरा दस्तूर रहा है कि ताकतवर के सामने कमजोर को भेजता हूं ताकि औकात सामने आ जाए। अब रहा हाथियों को लेके आया, बाबीलों को भेजा, कुफ्फार के मुकाबले में मकड़ी को भेजा। मकड़ी ने दहाने गार बंद किया। देखिए अली की जात क्या है, दहाने गार बंद कर दिया, जाले से बंद है दहाने गार, अंदर नबी। तवज्जो, एक मर्तबा जिब्रील आसमान पे हाथों को जोड़ के कहता है, परवरदिगार क्या इजाजत है मैं तेरे हबीब की नुसरत करूं, तेरे हबीब की मदद करूं। कहा जाओ जिब्रील और देख लो मेरी कुदरत का कमाल। तवज्जो, देख लो मेरी कुदरत का कमाल। आए जिब्रील, क्या देखा? दहाने गार जाले से बंद है, आगे बढ़े, इधर से सैयदुल मलाइका जिब्रील बढ़े, उधर से मकड़ी बढ़ी। कहती है सैयदुल मलाइका कहां का इरादा? कहा नबी की नुसरत के लिए आया हूं। कहा आप जाइए, मैं मदद कर रही हूं, मैं हिफाजत कर रही हूं। कहा तू कैसे हिफाजत कर रही है? कहा देख नहीं रहे दहाने गार जाने से बंद कर रखा है, अब कोई इसके अंदर नहीं जा सकता है। एक मतला जैसे जिब्रील ने सुना, कहा तू कमजोर, तेरा घर कमजोर, लोग फूंक देंगे तो तेरे साथ तेरे घर का भी पता न चलेगा, और दावा इतना बड़ा है कि मैं नबी की नुसरत कर रही हूं, मैं नबी की मदद कर रही हूं। एक मर्तबा जिब्रील से वो मकड़ी आवाज देती है, ए सैयदुल मलाइका मैं कमजोर, मेरा घर कमजोर, मेरा जाला कमजोर, लेकिन ये भी मानती हूं कि आप बड़े ताकतवर हैं, आप बड़े कुव्वत वाले हैं। आप अगर चाहें तो जमीन पर पर को मार के, पहाड़ पर पर को मार के पहाड़ रेजा रेजा कर दे। आप अगर चाहें तो जमीन के सातों तरफ उठा के आसमान से मिला दे। ए सैयदुल मलाइका आपकी कुव्वत और अपनी कमजोरी का इकरार करने के बावजूद ये मकड़ी दावा करती है कि इस जाले को आज आप भी ना तोड़ पाएंगे, इस जाले को आज आप भी ना तोड़ पाएंगे। जब ये सुना तो एक मर्तबा जिब्रील पीछे हटे और कहा ए मकड़ी अब मैं जाले को तोड़ के दिखाता हूँ। पीछे हटे जिब्रील, तवज्जो चाहता हूँ, पर को फैलाया, पहला पर मारा, जाला नहीं टूटा, दूसरा पर मारा, जाला नहीं टूटा, तीसरा पर मारा, जाला नहीं टूटा। मकड़ी मुस्कुरा के कह रही है, मैं कह रही थी ना नहीं तोड़ पाओगे, मैं कह रही थी ना नहीं तोड़ पाओगे। एक मर्तबा जिब्रील कहते हैं, तूने कौन सी आयत पढ़ी, तूने कौन सा सूरा पढ़ा, तूने कौन सा पारा पढ़ा, तूने कौन सी दुआ पढ़ी कि इतना कमजोर जाला इतना मजबूत हो गया कि मुझ जैसा ताकतवर नहीं तोड़ सकता। मकड़ी कहती है अगर यही बता दिया तो उसके जरिए तू तोड़ भी देगा, अगर यही बता दिया तो उसके जरिए तू तोड़ भी देगा। जिब्रील कहते बता या ना बता, अब मैं तोड़ के दिखाता हूँ। ये कहकर जिब्रील पीछे हटे, फिर पर को फैलाया, कहा या अली, जैसे या अली कहा मकड़ी हाथों को जोड़ के कहती है, ए सैयदुल मलाइका अब जाले पर न मारना। कहा क्यों? कहा तो टूट ही जाएगा। कहा वो क्यों? कहा यही नाम लेके तो जाला बनाया।
यही नाम लेके तो जाला बनाया है। इसका मतलब अली के नाम में भी ताकत है। अब हैरत ना कीजिएगा कि 2 उंगलियों पे बाबे खैबर कैसे उठा लिया। अरे जब नाम में इतनी ताकत है तो उंगलियों में कितनी ताकत होगी। ये अली की जात है। और हमारे आप अली किसी आम जात का नाम नहीं। अब मैं यहाँ से आगाज से गुफ्तगू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। करूं तारीफ किन अल्फाज में मौलाए कमर की, निराली शान देखी अल्लाह अल्लाह जोरे हैदर की। हिलाया और उखाड़ा फिर उठाया तोल कर फेंका, हकीकत खोल के रख दी अली ने बाबे खैबर की। आपने अली की जात क्या है। अली किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है। अगर अली हमारी समझ में आ जाए तो वो अली अली ना रहे, वो अली अली ना रहे। अली किसी आम जात का नाम नहीं। तवज्जो चाहता हूँ, आइए मेराज पर चलते हैं। फजीलत किस शख्सियत का नाम है अली, किस जात का नाम है अली। अल्लाह ने कायनात बनाई, क्या कह के बनाई कायनात आप जानते हैं ना। का पढ़िए सूरह यासीन। अल्लाह ने कहा कुन फयकुन। अल्लाह ने कुन कहा। अब मुतवज्जे हो जाइए मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ने कहा कुन फयकुन, कुन कहा हो गया। अल्लाह आसमान का शामियाना तानना चाह रहा था, कहा कुन तन गया। जमीन का फर्श बिछाना चाहा, कहा कुन बिछ गया। दरियाओं में रवानी पैदा करना चाहिए, कहा कुन पैदा हो गई। समंदर में वजदानी, कहा कुन वजदानी पैदा हो गई। सूरज को चमकाना हुआ, कहा कुन चमकने लगा। सितारे को झिलमिलाना हुआ, कहा कुन झिलमिलाने लगे। चांद को चमकाना हुआ, कहा कुन चमकने लगा। आसमान को बनाना हुआ, कहा कुन आसमान बन गया। तवज्जो, अल्लाह ने जो कुछ भी बनाया वो कुन कह के बनाया। अब देखता हूं मुतवज्जे है कि नहीं। कुछ भी अल्लाह ने कायनात में बनाया, कुन कहा, कायनात बनी। आसमान ताना, आसमान का शामियाना, कहा कुन तन गया। जमीन का फर्श, कहा कुन बिछ गया। सितारे कुन हो गए। चांद रोशन किया, कुन कह के। सितारे झिलमिलाए, कुन कह के। सूरज बनाया, कुन कह के। आदम को बनाया, कुन कह के। मूसा को बनाया, कुन कह के। जन्नत बनाई, कुन कह के। कौसर बनाई, कुन कह के। सारी चीजें अल्लाह ने कुन कह के बनाई ना। ज़हन में बात है, अल्लाह ने क्या कह के कायनात बनाई, कुन। कायनात बनाई कुन कह के। अब मेरा मौला क्या आवाज देता है, अना सिर्रो बैनल काफ वन नून बल हुआ अना काफ वन नून। देखो इमाम अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आवाज देते हैं, मैं काफ और नून के दरमियान का राज हूं, बल्कि काफ और नून मैं हूं। काफ और नून मैं हूं। काफ और नून मिला के कुन होता है। तो अब तर्जुमा करने दीजिए। अल्लाह ने कहा या अली आसमान बन गया, या अली जमीन बन गई, या अली सूरज बन गया, या अली चांद बन गया। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मस्जिद में विलादत, मस्जिद में शहादत, काबे में विलादत। अब तेरे हवाले, तेरे हवाले, रोजे पे बुला ले, बिगड़ी बना ले। नारा नारा हैदरी। और फरमाया अल्लाह ने कुन कहा, ये कुन नहीं कह रहा था, या अली कह रहा था। या अली कहा आसमान बन गया, या अली कहा जमीन बन गई, या अली कहा सूरज चमकने लगा। अली कह के कायनात बनाई है अल्लाह ने। अली की अजमत कौन समझेगा। इसलिए कि नबी खुद कहते हैं कि जब मैं शबे मेराज आसमानों की मंजिलें तय करता हुआ अल्लाह से बातें करने के लिए गया, मैं पहुंच गया मंजिल मकसूद पर। बातें करने के लिए किससे,
अल्लाह से का सारी बातें एक तरफ, मैंने जो अली के लिए बातें की है वो 18,000 राज की बातें की है। अल्लाह अकबर, 18,000 राज की बातें की है। और कोई कायनात में ऐसा नहीं है कि जिसे उन 18,000 में से एक राज बताऊं। दिन गुजरते गए, वक्त जाता गया, टाइम जाता गया, आई 24 रजब की तारीख, फतेह खैबर का दिन। आज फिर नबी ने एक ऐलान किया कि आज जो सबसे पहले अली की फतह की खबर मुझे सुनाएगा, वो जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। तवज्जो चाहता हूं, जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। तवज्जो, अब एक मर्तबा रसूल खुदा ने अल्लाह से मदद तलब की, 40वां दिन आया। तवज्जो, अल्लाह से मदद तलब की है, अल्लाह से। अब मुझे नहीं मालूम जुमले की कदर आप कैसे करेंगे। अल्लाह से मदद तलब की, अल्लाह से। परवरदिगार 40वां दिन आ रहा है, मैंने कहा था 40 दिन में खैबर फतह हो जाएगा, 39 दिन गुजर गए हैं, अब मेरी मदद कर। का मैं क्या मदद करूं? नादे अली अनमत जाए। मैंने अली को रखा है मदद के लिए, पुकारा उस अली को। अब रसूल ने मदीने का रुख किया, अली को पुकारा, नूर की आवाज नूर के कानों में आई, साहिबे मौजिजा की आवाज साहिबे मौजिजा के कानों तक पहुंची। अली ने नबी की आवाज को सुना, आए खैबर में। तवज्जो, खैबर में पहुंचे, फतह का सेहरा जब अली के सर पर बन चुका, अली खैबर फतह कर चुके। सलमान ने कहा, या रसूल अल्लाह मुबारक हो। सलमान, क्या हुआ? अली ने फतह पाई है। नबी ने क्या ऐलान किया है? जो सबसे पहले अली की फतह की खबर मुझे सुनाएगा, वो जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। तवज्जो चाहता हूं, जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। अब जनाबे सलमान कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुबारक हो। क्या हुआ सलमान? अली ने फतह पाई है। अभी मुबारकबादी का सिलसिला जारी था कि इतने में मौलाए कायनात भी आ गए। या अली आपको भी मुबारक हो। मुबारकबादी का सिलसिला खत्म हुआ, अली ने सलमान के बाजू को पकड़ा, ले गए कुछ दूर। सलमान, मैंने सुना है कि आज रसूल ने एक ऐलान किया है कि जो सबसे पहले अली की फतह की खबर सुनाएगा, जो मांगेगा मैं अता करूंगा। हाँ या अली, ऐसा ही हुआ है। तो सलमान, क्या मांगते हो? पहले मैंने सोचा था कि कौसर मांग ले, फिर ख्याल आया कि जिसका आका साकी कौसर हो, वो कौसर लेकर क्या करेगा? फिर सलमान, क्या मांगते हो? फिर ख्याल आया जन्नत मांग ले, लेकिन फिर सोचा मैंने, आका तो सरदार जन्नत है, हम जन्नत लेकर भी क्या करेंगे? तो सलमान, क्या मांगना चाहते हो? या अली, कुछ समझ में नहीं आता है कि कौनैन के शहंशाह से क्या मांगे। अगर कोई छोटी चीज मांगते हैं तो उस शहंशाह के खिलाफ है कि इतने बड़े बादशाह से इतनी छोटी चीज मांगी जा रही है, और अगर बड़ी चीज मांगते तो हमारे खिलाफ है। लोग कहेंगे गुलाम होकर इतनी बड़ी चीज मांग रहा है, एक गुलाम होकर इतनी बड़ी चीज मांगता है। तो एक मर्तबा मौला कहते हैं, सलमान, क्या चाहते हो कि अली बताए क्या मांगना है? या अली, इससे बेहतर क्या होगा? क्या सलमान बार है रिसालत में जाना, जानवे अदब तय करना, हाथों को जोड़ना, कहना या रसूल अल्लाह वादा याद दिलाने आया हूँ। रसूल कहेंगे वादा याद है, मांगो। सलमान, क्या मांगते हो? तो तुम फौरन कह देना, या रसूल अल्लाह आज जो शबे मेराज अल्लाह से बातें करने गए, उन बातों में आपने जो 18,000 राज की बातें अली के लिए की थी, उन राजों में से मुझे एक राज बता दीजिए। उन राजों में से एक राज बता दीजिए। आए सलमान, बारगाह रिसालत में हाथों को जोड़ा, या रसूल अल्लाह वादा याद दिलाने आए। सलमान, मांगो, क्या मांगते हो? वादा याद है। तो 18,000 में से जो 18,000 बातें की थी अल्लाह से अली के लिए, एक राज बता दीजिए। का सलमान, क्या अली से मिलके आ रहे हो? क्या क्यों या रसूल अल्लाह? का ये राज सिर्फ 3 को पता है, या हमें मालूम है, या अल्लाह को या अली को? हमसे पूछो नहीं, अल्लाह तक जा नहीं सकते, राजा अली से पूछ के आ रहे हो? कहा मैं अली से मिल के आ रहा हूं। सलमान, कसम खुदा की, अगर तुम्हारे अलावा कोई पूछता तो कभी न बताता। तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि मैंने तुम्हें अपने अहले बैत में शामिल कर लिया। सलमान, अगर वो राज देखना चाहते हो, फुला वादी में चले जाओ, पहाड़ नजर आएगा, चोटी पर चढ़ जाना, ठोकर मारना, रास्ता नजर आएगा, जीने से उतर जाना, 18,000 में से एक राज जाहिर हो जाएगा। सलमान चले, तवज्जो, सलमान चले, आए खुशी के आलम में। मौलाई थे ना, अली वाले थे ना, इसलिए जबान पे एक ही नारा है, अली मौला, अली मौला, अली मौला।
علی مولا کے نعرے لگاتا ہوا یہ علی کا غلام چلا، وادی آ گئی، وادی میں آئے، سلمان کہتے ہیں پہاڑ نظر آیا، میں چوٹی پر چڑھ گیا، ٹھوکر ماری، راستہ نظر آیا، زینے سے اتر گیا۔ جناب سلمان کہتے ہیں میں زینے سے اترا، میں نے کیا دیکھا؟ تو حد نظر نور کا شہر نظر آ رہا ہے۔ اس نور کے شہر میں 70 شارے ہیں، ہر شارے میں 70 خیابان ہیں، ہر خیابان میں 70 محلے ہیں، ہر محلے میں 70 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں 70 ممبر ہیں، اور ہر ممبر پر علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدم کا مولا، آدم کا مولا، عیسیٰ کا مولا، موسیٰ کا مولا، ابراہیم کا مولا، شیش کا مولا، آقا ابو ذر، کونین کا بادشاہ، مولا قمر، ایک نعرہ حیدری۔ گیا جب عرش پر میرا نبی شب معراج، گیا جب عرش پر میرا نبی شب معراج، ارے بجز خدا کے بتاؤ تو ساتھ کس کا تھا؟ خدا کا جسم نہیں ہے تو پھر میرے بھائی ارے نبی کی سنت بنا تھا وہ ہاتھ کس کا؟ دل والا نبی بالی فلک بالا، نبی بالا ملک بالا، نبی بالا خدا بالا، ماں کا دودھ باپ کا لہو بالا، ماں کا دودھ باپ کا لہو بالا، گئے اب جدھر نظر ادھر علی، جہاں تک نظریں کام کر رہی وہاں علی۔ سلمان سوچنے لگے کہ جہاں دیکھ رہے ہیں ادھر علی، جدھر نظر جا رہی وہاں علی، ہر جگہ علی نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ علی نظر آ رہے ہیں، جدھر نظر ادھر علی۔ سلمان سوچے لاؤ دیکھتے ہیں علی خاموش بیٹھے ہیں یا کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، سننا بھی تو چاہیے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ سوچ کے ایک مسجد میں داخل ہوئے کہ میں نے تو علی کو دیکھ لیا ہے، علی نے مجھے نہیں دیکھا ہے، علی نے مجھے نہیں دیکھا۔ یہ سوچ کے جناب سلمان آئے، مسجد میں آئے، توجہ چاہتا ہوں، داخل ہوئے اور ایک ستون کے پیچھے چھپ گئے تاکہ علی علیہ السلام اگر دیکھ بھی لیں توجہ تو ستون کے پیچھے میں چھپا ہوا اسی لیے چھپے کہ علی علیہ السلام دیکھنے بھی نہ پائے، ورنہ جو ارشاد فرما رہے ہیں پھر میری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ستون کے پیچھے چھپے علی کا خطبہ سن رہے ہیں، کتابوں میں خطبہ موجود ہے، الحجہ کتاب کا نام ہے، دیکھ لیجئے گا، مولا کی یہ بات موجود ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ آواز دیتے ہیں، کہتے آسمان کے شامیانے کو میں نے تانا، زمین کے فرش کو میں نے بچھایا، کشتیوں کو پانی پر رواں میں نے کیا، دریاؤں میں روانی میں نے پیدا کی، سمندر میں وجدانی میں نے پیدا کی، پھولوں کو میں نے مہکایا، کلیوں کو میں نے چٹکایا، ڈالیوں کو میں نے لچکایا، پھاروں کو میں نے کھٹکایا، خاروں کو میں نے کھٹکایا، جنت کو میں نے بنایا، آدم کے خمیر کو میں نے دونوں ہاتھوں سے گوندھا، ارحام مادر میں بچوں کی تصویریں میں بناتا ہوں، نوح کی کشتی کو پار لگانے والا میں ہوں، موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرانے والا میں ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرانے والا میں ہوں، موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرانے والا میں ہوں۔ سلمان کیا سوچ رہے تھے کہ میں نے علی کو دیکھا ہے، علی نے مجھے نہیں دیکھا ہے۔ خطبے کے آخر میں میرا مولا آواز دیتا ہے، انا الاول انا الآخر انا الظاہر انا الباطن انا الحیات انا الممات انا الحیات الحیات
انا الممات الممات، میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، میں ہی زندگی ہوں، میں ہی موت ہوں، اور میں ہی موت کو موت بھی دیتا ہوں، اور میں ہی زندگی کو زندگی بھی دیتا ہوں۔ بھائی سلمان کیا سوچ رہے تھے کہ میں نے علی کو دیکھا ہے، علی نے مجھے نہیں دیکھا۔ خطبے کے آخر میں میرا مولا آواز دیتا ہے، اے مغرب و مشرق والو، اے جنوب و شمال والو، اے زمین و آسمان والو، تم نے میری بات سنی، ہر طرف سے آواز آئی، آقا سن لیا، آقا سن لیا، آقا سن لیا۔ تو میرا مولا پھر آواز دیتا ہے، اے زمین و آسمان والو، اے مغرب و مشرق والو، اے جنوب و شمال والو، جب تم ہم سے اتنی دور ہو کے ہماری بات کو سن رہے ہو تو کیا ستون کے پیچھے چھپا ہوا سلمان نہیں سن رہا؟ علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 چمن چمن گلی گلی علی 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 حسین کا بابا علی علی زینب کا بابا علی علی ہم سب کا مولا علی علی میرا دل سے بولو، علی علی میرا جان سے بولو، علی علی سب مل کر بولو، علی علی نعرے ہر موڑ پر حیات کی جلوہ علی کا ہے، کعبہ علی کا، عرش مولا علی کا ہے، قرآن کی صورتوں میں سراپا علی کا ہے، اللہ کی کتاب قصیدہ علی کا ہے، انسانیت کی قوت پرواز ہے علی، ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی، جناب سلمان یہ دیکھتے ہیں کہ تو مولا اس سے واقف ہو چکے ہیں، میں بھی یہی نکل کے آ گئے، یا علی میں تو آپ کو رسول کے پاس چھوڑ کے آیا تھا، یہاں کا سلمان ابھی تو 18,000 میں سے ایک ہی راز ظاہر ہوا ہے، ابھی دیکھ ہی کیا ہے کہ کہاں کہاں علی ہے۔ علی کسی عام ذات کا نام نہیں ہے، اسی لیے آیت اللہ شبر نے لکھا، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا کائنات آواز دیتے ہیں، انا اصغر من ربی بسنتین، میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ اب میں چہرے بھی تو دیکھ لوں، اس کے بعد وضاحت کروں گا۔ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب امیر۔ انکار کیا تو دائرہ اسلام سے خارج۔ مولا کی بات ہے نا، انکار کر نہیں سکتے، اس لیے کہ کل ایمان کی بات ہے، انکار کر دیا تو ایمان نہیں، ایمان نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، علی کی بات ہے نا، امام نے کہا ہے انا اصغر من ربی بسنتین، میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا۔ بحث سنتین پہ ہے کہ اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے سنتین، یا پیش کے ساتھ پڑھا جائے سنتین، یا زیر کے ساتھ پڑھا جائے سنتین، کیا پڑھیں گے؟ اب میں تینوں کے ترجمے بتا دیتا ہوں، مرضی آپ کی ہے، جو بھی آپ مان لیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ سنتین پڑھیں گے تو ترجمہ لفظی یہی ہوگا کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں، مگر مولا کا مقصد یہ ہے کہ سال سے مراد یہاں ہفتے دن مہینے والے سال نہیں، بلکہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں صرف اور صرف 2 سے چھوٹا ہوں، اللہ سے، نبی سے، باقی کائنات میں سب سے بڑا، ایسا بڑا کہ اس علی نے نام ہی علی رکھ دیا، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ توجہ، ظاہری بات یہ، اگر آپ سنتین پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا کہ میری سنت 2 سنتوں کے بعد ہے، ایک اللہ کی، ایک نبی کی، بعد میں میری سنت۔ توجہ چاہتا ہوں، بعد میں میری سنت۔ اگر آپ زیر کے ساتھ سنتین پڑھیں گے، یہ ہو سکتا ہے ہر ایک نہ مانے، اسی لیے میں نے کہا تینوں بتا دیتا ہوں، اعتراض مت کریے گا، جو سمجھ میں آئے وہ مانیے گا۔
बताए तीनों दे रहा हूं, तवज्जो। एक तो ये कि मैं दो से छोटा हूं, अल्लाह और नबी। दूसरे ये हमारी सुन्नत, दो सुन्नतों के बाद एक अल्लाह और एक नबी की। अब ये आखिरी सेनाएं, सेना अरबी में ऊँघने को कहते हैं। जैसे बात लोग मजलिस में ऊँघने लगते हैं, इसको सेना कहते हैं। और जो बाद में ऊँघने के बाद बिस्तरों पे सोते हैं, उसको अरबी में नौम कहते हैं। तवज्जो चाहता हूं, उसको नौम कहते हैं, जो आप हर सुबह सुनते होंगे। सेना ऊँघने को कहते हैं, नौम सोने को कहते हैं। अब सेना को और नौम को एक लफ्ज में लाएंगे तो सनतैन, सेनतैन कहेंगे, जेर के साथ सेनतैन कहेंगे। जब नौम को, आयतुल्लाह शुक्र लिख रहे हैं कि अगर आप सेना को और नौम को दोनों को एक लफ्ज में लाएंगे तो सेनतैन कहेंगे। इमाम क्या बताना चाहते हैं? पढ़िए आयतुल कुर्सी, इरशाद हो रहा है, ला ताखुजुहु सीनतु वला नौम। अल्लाह वो है कि जिसे ना ऊँघ आती है, ना नींद आती है, ना वो सोता है, ना ऊँघ आती है। मौला यही बताना चाहते हैं कि अल्लाह में और हम में बस यही फर्क है कि वो सोता नहीं है, ऊँघ नहीं आती है। मैं सोता भी हूँ, ऊँघ भी आती है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। समझिए, इंसान की ताकत परवास, इंसान की ताकत परवास सोच सकती तो क्या? मैं सोचता हूँ, सोचने में अली क्या लगता? इंसान की ताकत परवास सोच सकती तो क्या? मैं सोचता हूँ, सोचने में अली क्या लगता? अरे तू नमाज न पढ़े तो इंसान न लगे, तू नमाज न पढ़े तो इंसान न लगे, अली नमाज न पढ़ता तो खुदा लगता। आपने गौर फरमाया। मैं आज खालिस फजाइल आपको सुनाना चाहता हूँ कि अहले बैत की अजमत, अली अलैहिस्सलाम की फजीलत क्या है, वकार क्या है अली। तो का देखो, अल्लाह में और मुझ में यही फर्क है। उसे ऊँघ नहीं आती, नींद नहीं आती, मैं सोता भी हूँ। शब हिजरत यही बताने के लिए तो सोए। अरे अली वहदानियत ही को तो बचाने के लिए सोए थे। तवज्जो चाहता हूँ। अब इमाम ने जो ये कहा मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। दलील क्या है? दलील ये है कि नबी बैठे हुए हैं, अली बैठे हुए हैं, जिब्रील नाजिल हुए। रसूल ने पूछा, जिब्रील ये बताओ कि आज तुम्हारी एज क्या है, कितनी उम्र है, कितने बरस के हो गए, कितने साल के हो गए? कहा या रसूल अल्लाह मुझे नहीं पता है कि आज मेरी एज क्या है, मैं कितने बरस का हूँ, कितने साल का हो गया हूँ। कहा फिर कैसे अंदाजा लगाया जाए कि आज तुम कितने बरस के हो गए हो, कितने साल के हो गए हो? कहा या रसूल अल्लाह बस इतना समझ लीजिए कि आसमान पे एक सितारा है जो 30,000 साल के बाद निकलता है और मैंने उसे 30,000 बार देखा है। तवज्जो चाहता हूँ, 30,000 साल के बाद निकलता है और मैंने उसे 30,000 बार देखा है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आज मेरी एज क्या है, उम्र क्या है, मैं कितने बरस का हुआ, मैं कितने साल का हुआ। एक मरतबा रसूल कहते हैं, ए जिब्रील क्या तुम उस नूर को देखोगे तो पहचान लोगे? कहा या रसूल अल्लाह कोई किसी को एक बार देखता है तो भूलता नहीं है, मैंने उस नूर को 30,000 बार देखा है, मैं कैसे भूल जाऊंगा। एक मरतबा रसूल कहते हैं, या अली जरा पेशानी से अमामा तो हटाओ। सलावत पढ़े मोहम्मद आले अब जो अमामा हटाया तो वही नूर। का या अली उस वक्त आप कहाँ थे? का तुम हमसे पूछते हो, जब लफ्ज़े उस वक्त भी नहीं था तब भी मैं था, मैं तब भी था। तवज्जो चाहता हूँ, अजमत क्या है इनकी, फजीलत क्या है अली की, कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है और हर एक अली तक आ भी नहीं सकता है। जैसे कुरान हर एक नहीं छू सकता, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान छूने के लिए बदन की तहारत की शर्त है, अली तक आने के लिए खून की तहारत की शर्त है। खून पाक होगा तो अली तक आएगा। आप गौर फरमाएं कि
علی تک آنے کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے. خون پاک ہوگا تو علی کا دروازہ دکھائی دے گا, ورنہ پھر یہی پوچھتے گھومیں گے علی ہمیں قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے, قرآن میں دکھاؤ علی کہاں ہے. ارے قرآن میں علی نہیں ہے, علی خود قرآن ہے. اور بلکہ امام نے خود فرمایا ہے کہ جہاں پہ بھی, آیت اللہ مستمل لکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی لفظ صلاۃ, لفظ زکات, لفظ حج, نیک چیزوں کے جتنے بھی نام آئے ہیں وہ سب میرے نام ہیں. قرآن میں جتنے بھی آئے ہیں سب میرے نام ہیں. توجہ, اور میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم, اے صاحبان ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایمان کی منزل بعد میں ہے, اسلام کی منزل پہلے ہے. اور اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اسلام لے آؤ. اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اسلام لے آؤ. عجیب بات نہیں ہے, عجیب بات نہیں ہے یہ کہ اللہ صاحبان ایمان سے کہہ رہا ہے اسلام لے آؤ. کہ بھائی جسے تم اسلام سمجھتے ہو یہ کوئی اسلام نہیں ہے. پھر کون ہے؟ کہا جن کے دروازے سے ملا انہی سے پوچھو. میں نے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ سلم کیا ہے؟ کہا یا ولایت علی ابن ابی طالب. ولایت علی ابن ابی طالب ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں آ جاؤ. کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی ہرگز پیروی نہ کرنا. کہا یہ شیطان کون ہے؟ کہا اسی ولایت کے دشمن کو تو شیطان کہتے ہیں, ولایت کے منکر ہی کو تو شیطان کہتے ہیں. اس کے بعد کیا آیت کہہ رہی ہے, انہ لکم عدو مبین, اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. لیجئے ایک بات اور واضح ہو گئی, شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان ضرور ہے مگر منافق نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شیطان ضرور ہے اور منافق نہیں. اسی لیے اللہ کی ہر ایک تصویر کرتا ہے, وہ چاہے جو بھی ہو, ہر کوئی اللہ کی تصویر کرتا ہے اپنی اپنی زبان میں. نجس العین دو جانور, کتا اور خنزیر, وہ بھی اللہ کی تصویر کرتا ہے. کتا کیا کہتا ہے, پروردگار تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا, خنزیر نہیں بنایا. خنزیر نہیں بنایا. خنزیر کیا دعا, خنزیر کی حمد کیا ہے, وہ کیسے تسبیح الہی کرتی, آواز دیتی پروردگار تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے, شکر ہے کہ خنزیر بنایا, منافق نہیں بنایا. منافق نہیں بنایا. بھائی خنزیر کی دعا یہ ہے, کتے کی دعا یہ ہے کہ ہمیں پروردگار ہمیں تو نے کتا بنایا, خنزیر نہیں بنایا. خنزیر اس انداز سے حمد الہی کر رہی ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا, منافق نہیں بنایا. اب سمجھے منافق کتنا گرا ہوا ہے کون یہ منافق, تلاش کیسے کیا جائے؟ تو رسول خدا کہتے ہیں یا علی بغض کا کفرن و نفاق, تم سے جو بغض رکھے علی وہی کافر بھی ہے منافق بھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کعبہ کوثر مسجد ممبر خیبر خندق ایک نعرہ حیدری. ہم نے غور فرمایا خدا سے مانگتا ہوں یا نبی سے مانگتا ہوں, خدا سے مانگتا ہوں یا نبی سے مانگتا ہوں, ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ اسی سے مانگتا ہوں. مگر خدا کی قسم یہ بھی ایک حقیقت ہے, مشکلوں میں مدد میں علی سے مانگتا ہوں. آپ نے غور فرمایا کہ علی علیہ السلام کی محبت کبھی منافق قبول نہیں کرے گا. پہچان ہے یہی, ذکر علی کریے, چہروں کو دیکھتے جائیے.
खिल उठे तो समझिएगा कि खून सही है, उतर जाए तो समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ तो है। चेहरा सबक के उठा क्यों? साथ दिल बोलो, सबक के साथ दिल बोलो, जमी बोली मरद बोलो, माँ का दूध बाप का लहू 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 बोलो। अली की विलायत इतनी अहम है कि अल्लाह ने पूरी जिम्मेदारी के साथ उलमा का मजमा है, इनके दरमियान बयान कर रहा हूं। अली की विलायत इतनी अहम है कि जब तक अल्लाह ने एक एक नबी से अली वलीउल्लाह नहीं कहलवाया, नबूवत नहीं दी। ये है अली की विलायत। और ये भी याद रखिएगा मेरे नौजवान भाइयों कि अगर मुनकिर विलायत है तो उसे नबी भी नहीं बख्शवा सकता। दलील दूं? दलील है, तवज्जो। नबी भी नहीं बख्शवा सकता अगर मुनकिर विलायत है। जनाबे लूत नबी, जनाबे नूह नबी, जनाबे लूत की कौम पर भी अजाब आया, जनाबे नूह की कौम भी मुअज़्ज़ब हुई। तवज्जो, उनकी कौम पर भी अजाब। लेकिन दोनों नबियों की कौम पे अजाब तो आया, मगर जनाबे लूत को पहले शहर से बाहर निकाला, फिर कौम पे अजाब भेजा। जनाबे नूह को पहले कश्ती में बिठाया, फिर कौम पे अजाब भेजा। नबियों की मौजूदगी में कौम पे अजाब नहीं आया। मैं कहूंगा परवरदिगार जनाबे लूत को छोड़ देता, कौम पे अजाब भेज देता, जनाबे नूह को बचा लेता, कौम पे अजाब भेज देता। ये लूत को शहर से क्या निकालने की जरूरत, ये नूह को कश्ती में बिठाने की क्या जरूरत? क्या तुझे नहीं मालूम है हमारा नबी रहमत होता है, और जहां रहमत हो वहां अजाब नहीं आता। जहां रहमत हो वहां अजाब नहीं आता। तो जनाबे लूत की कौम पे अजाब आया, मगर शहर से निकाला, फिर अजाब भेजा। जनाबे नूह की कौम पे अजाब आया, मगर शहर से निकाला, फिर अजाब। पहले कश्ती में बिठाया, फिर अजाब भेजा। ये दो नबियों की मिसालें याद रखिए। लूत की कौम पे भी अजाब आया और नूह की कौम पे भी अजाब आया, मगर लूत को शहर से निकाला, फिर कौम पर अजाब भेजा। नूह को कश्ती में बिठाया, फिर कौम पे अजाब भेजा। मैं कहूंगा परवरदिगार ये ऐसा क्यों कर रहा है, इनकी मौजूदगी में क्यों नहीं अजाब भेजता? कि हमारा नबी रहमत होता है, और जहां रहमत हो वह अजाब नहीं आता है। तो परवरदिगार तेरा तो कानून बदलता नहीं है। जहां रहमत हो जब वहां अजाब नहीं आता है, तो गदीर के मैदान में तो रहमतुल लिल आलमीन सामने मौजूद है। हारिस पर क्यों अजाब आ रहा है? क्या यही तो बताना है कि नबी की मौजूदगी सबको बचा सकती है, मुनकिर विलायत को नहीं। मुनकिर मुनकिर विलायत को नबी भी नहीं बचा सकता। अब कोई पहलू में लिखा के खुश ना हो जाए। अरे जब नबी के सामने हारिस न बच पाया तो इनकार विलायत करके पहलू से क्या बचेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। अजाब तो आएगा। काबा बना है जिसकी विलादत के वास्ते, मस्जिद बनी है जिसकी शहादत के वास्ते, आए रसूल जिसकी इमामत के वास्ते, जन्नत बनी है जिसकी मोहब्बत के वास्ते। जो भी अली के इश्क से दामन छुड़ाएगा काबे में भी मरेगा, जहन्नुम में जाएगा। नारा हैदरी।
नबी भी नहीं बख्शवा सकते हैं मुनकिर विलायत को। अच्छा चलिए, नबी ने दुआ तो कर दी, अगर कर दी थी कि परवरदिगार से बख्श दे, तो अल्लाह नहीं बख्शेगा, नहीं बख्शेगा। उसकी भी दलील है। क्यों? का रवायतों में मिलता है कि शैतान ने जब आदम की खिलाफत का इनकार किया तो अल्लाह ने उसे 3 दिन का मौका दिया। 3 दिन अल्लाह ने मौका दिया। आज नहीं समझ में आ रहा है, कल आदम को समझ के सजदा कर लेना। अच्छा, कल भी नहीं समझ में आए, परसों समझ लेना। अल्लाह ने 3 दिन का मौका दिया, लेकिन हारिस ने इधर गदीर में इनकार दिया, 1 लम्हे का मौका नहीं दिया। इधर इनकार किया, फौरन अज़ाब आ गया। परवरदिगार शैतान को वहां 3 दिन का मौका दे रहा है, यहाँ 1 लम्हे का मौका नहीं। तो अब वहां खिलाफत की बात थी, यहाँ विलायत का मसला है। विलायत का इनकार करने वाला 1 लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये है विलायत अली अलैहिस्सलाम की। कहना पड़ेगा अली वलीउल्लाह। आज नहीं कहा तो कल कहेंगे। क्या कहने हम नहीं कहलवा पा रहे हैं तो पर्दे वाला कहलवाएगा। इसीलिए तो जुल्फिकार लेके आएगा कि ऐसे नहीं तो ऐसे कहो। कहना तो पड़ेगा अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह। हर शय कहेगी अलिय्यन वलीउल्लाह, अलिय्यन वलीउल्लाह। अजीज़ान इस्लाम, ये अली का मसला है, अहले बैत का मसला। अहले बैत के मसले में अल्लाह अपने नबियों को नहीं छोड़ता है। भाई जनाबे आदम जन्नत में गए, का देखो आदम सब कुछ जन्नत में इस्तेमाल करना जो भी है तुम्हारे लिए है, लेकिन वो जो शजर है उसके पास न जाना। वो जो दरख्त लगा हुआ है ना आदम, करीब न जाना, फल भी न खाना उसका। आदम करीब तो नहीं गए, फल खा लिया। क्या हुआ आदम के साथ? निकाल दिए गए, जमीन पर भेज दिए गए। क्यों? तवज्जो चाहता हूं, क्यों ऐसा हुआ? भाई अल्लाह की मखलूक है आदम ना। आप अपने बच्चे से कहें फ्रिज में मिठाई रखिए, खाना मत, छूना मत। बच्चा गया खा लिया, आप घर से निकाल देंगे? भाई गलती हो गई, छोड़ो, आइंदा नहीं करेगा। आप तो करते नहीं। वो खालिके कायनात, वो एक फल खाने की बुनियाद पे आदम को जन्नत से निकाल दिया। कहा नहीं, मसला फल का नहीं था, बल्कि अल्लामा मजलिसी लिख रहे हैं कि जिस शजर का जनाबे आदम ने फल खाया था वो दरख्त रसूल आजम की बेटी जनाबे फातिमा का था। मुझे नहीं पता है आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। जिस शजर का जनाबे आदम ने फल खाया था वो दरख्त जनाबे सैयदा का था। तो आदम जैसा मासूम, आदम जैसा नबी, आदम जैसा हादी अगर बगैर इजाजत के सैयदा के एक शजर से एक फल खा ले तो अल्लाह उसे तो जन्नत में रखना गवारा नहीं करता। उन मुसलमानों का क्या होगा जिन्होंने ज़हरा का बुरा ज़हरा का मसला उन लोगों के शजरों में इब्लीस का साया था। हैदर के जो मुमकिन थे, ज़हरा के जो मुजरिम थे, वो तीनों जो बचपन में मर जाते तो अच्छा। अल्लाह अपने नबियों को भी नहीं छोड़ रहा है। अहले बैत का मसला है, दुनिया को सबक दे रहा है कि देखो जब हम अपने नबियों को इनके मसले में नहीं छोड़ते हैं तुम्हें कहां से छोड़ देंगे। ये मसला शहजादी का है, ये मसला अहले बैत का है। अजमत समझिए अजीजान इस्लाम कि अहले बैत की अजमत क्या है, अहले बैत की फजीलत क्या है, इनका वक़ार क्या है। तो अंदाजा नहीं लगा सकता अहले बैत की अजमत और फजीलत क्या है। आप देखिए इनकी अजमतों तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है, बहुत है।
غلاموں کی عظمت دیکھ لیجئے ان کے. 8ویں علی کا غلام معروف کرخی. توجہ, غلام علی زہرا کی دہلیز پر 8 سال اپنی داڑھی سے جھاڑو لگانے والا معروف معتبر غلام. اس دور کا بادشاہ کشتی میں سفر کرنا چاہتا ہے. معروف کیا ہوا؟ اپنے آقا سے کہو ایک تحریر لکھ دے تاکہ اگر کوئی طوفان گھیر لے, دریا میں طوفان آ جائے تو ہم اس سے بچ سکے, نجات مل سکے. ظالم ہے لیکن اسے بھی پتا ہے کہ نجات یہی گھرانہ دلا سکتا ہے. معروف نے کہا اچھا ایسا ہے؟ کہا کچھ دور ہٹنے کے بعد ایک تحریر لکھی, کہا پروردگار تجھے معروف کرخی کا واسطہ اسے نجات دے دے. لا کے حوالے کر دیا. اس نے رکھا, 20 دھارے میں پہنچا. موجوں نے کہا موقع اچھا ہے, غرق کر دیا جائے, ڈبو دیا جائے. طوفان نے گھیر لیا. اسے یاد آیا کہ معروف کے ذریعے اس کے آقا سے ایک تحریر لکھوائی تھی. کھولا, دیکھا معروف نے یہ لکھا ہے کہ پروردگار تجھے معروف کا واسطہ اسے نجات دے دے. غصے میں آ گیا کہ ایک تو میں نے کہا تھا آقا سے لکھوانا, آقا سے بھی نہیں لکھوائی, دوسرے آقا کا واسطہ بھی نہیں دیا, اپنا ہی واسطہ دیا. اب تو نجات ملنا نہیں ہے. پھر بھی اس نے قسم کھائی کہ اگر زندہ رہے تو سب سے پہلے معروف کو قتل کریں گے. جا کے پرچے کو پارا کیا, ٹکڑے ٹکڑے, دریا کے حوالے کیا. جیسے دریا کے حوالے کیا طوفان رک گیا. طوفان ٹھہر گیا, رک گیا. اب یہ بھی حیرت زدہ ہے, واپس آیا, دیکھا پھر دریا کے کنارے معروف ٹہل رہے ہیں. معروف مسکرائے, کہ یہ بتا سفر کے حالات تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ سفر کے حالات تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ ایک مرتبہ اس بادشاہ نے بیان کرنا شروع کیا, ایسا 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 ہوا, طوفان نے گھیرا, اور جب میں نے پرچہ دیکھا غصہ آیا, میں نے قتل کا ارادہ کیا, یہ سب ہوا. اچھا یہ بتاؤ معروف, توجہ چاہتا ہوں, یہ بتاؤ معروف کہ تمہارے نام میں یہ اثر آیا کہاں سے؟ کہ تجھے نہیں پتا ہے 8 سال میں نے در زہرا پہ داڑھی سے جھاڑو لگائی ہے, یہ اس کی وجہ سے اثر ہے. تو ایک مرتبہ معروف سے کہتا ہے, توجہ چاہتا ہوں, جملے کی قدر کیجیے گا, صاحبان علم و فہم بیٹھے ہوئے, توجہ چاہتا ہوں. ایک مرتبہ وہ ظالم کہتا ہے یہ بتاؤ جب میں نے کہا تھا کہ اپنے آقا سے تحریر لکھوا کے لاؤ تو تم نے خود کیوں لکھی, اپنا ہی واسطہ کیوں دیا؟ معروف کہتے ہیں کہ سن, جہاں غلام مشکلیں آسان کر دے وہاں آقا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. ہم اطمینان سے مجلس میں آئے بیٹھے ہیں, ہم اطمینان سے مجلس میں آئے بیٹھے ہیں کہ جیسے نوح کی کشتی میں آئے. اور ہم اور آپ نہیں صرف آج مجلس میں, ارے قرآن پاک کے سورے بھی آئے بیٹھے اللہ نے محمد کے لیے جس کو شعر جری لکھا ہے, مولا کل تو شعر جری لکھا ہے, اس کی عظمت کو زمانے میں بتانے کے لیے, اس کی عظمت کو زمانے میں بتانے کے لیے چاند کے بیچ میں اللہ نے علی لکھا ہے. سمجھے آپ کی عظمت کیا ہے؟ ان کے در پر سر جھکانے والوں کی طریقہ بھی بتایا ہے. سر جھکا کے آنا اس دروازے پہ تو ایسا بلند ہوگا کہ کوئی چھو نہ پائے گا, اور اگر سر جھکا کے نہیں آئے, اٹھا کے آئے تو ایسا نیچا ہوگا کہ کوئی اٹھا نہ پائے گا. کیا بات ہے, یہی تو شان ہے اس دروازے کی. آؤ بیزر بن کے آؤ, ابوذر بن کے جاؤ گے یہاں سے. یہاں آؤ تو در اہل بیت کا سر جھکا کے آؤ. شان بتائی ہے کہ ان کی عظمت کیا ہے, ان کی فضیلت کیا ہے, وقار کیا ہے. غلاموں سے سمجھیے, دنیا تو یہ کہتی ہے کہ جناب ایسے فضائل نہ پڑھے جائیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے نصیری ہو جائے. بچے نصیری ہو جائے, ارے ڈھنگ سے پہلے شیعہ ہو جائیے. جو علی ولی اللہ نہ کہتا ہو علی کو
वली ना मानने को तैयार हो वो खुदा मानेगा। कैसे फजाइल न पढ़े जाए जनाब? अच्छा तो इसमें फजाइल की क्या गलती है? कुरान से जनाबे मूसा और जनाबे ईसा की फजीलत की आयतें निकाल दीजिए, कहीं बच्चे वो पढ़ के ईसाई और यहूदी ना हो जाए। भाई फजाइल की आयतें नहीं निकाली जा सकती हैं, पढ़ने वाले की गलती है, कुरान की गलती नहीं है। तो यहाँ भी फजाइल नहीं छोड़े जा सकते, समझने वाले की गलती है, पढ़ने वाले की नहीं। जहन में एक बात रख के सुने फजाइल कि भाई जिसकी इतनी अजमत है उसका भी खालिक है कोई। खुद नुसैरियत की मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। अली खुद कहते हैं, मशारिकुल अनवार में रजा बरसी ने लिखा है, अल खतरा में आयतुल्लाह मुस्तंबिर ने लिखा है, बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि मौलाए कायनात खुद कह रहे हैं कि मुझे रब ना कहो। उसके बाद जितनी अजमतें तुम बयान कर सकते हो बयान करो। जहां से मेरी अजमतों का आगाज होता है वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। ये तो वो अली है कि जिसे मैं जानता हूं, न जाने सलमान के दिल में कैसा अली होगा। तो 10 दर्जे के ईमान पे फायज है। जरा सोचिए कि अली की अजमत समझे अज़ीज़ान गिरामी। मीसम के दिल में दार को भी मिंबर बना लेते हैं। मीसम कमजोर, ज़ईफ, बूढ़े, लागर, कैद खाने में भी, जंजीरों में जकड़े भी। अगर इंसान कोई जुर्म करता है कितने पुलिस वाले आते हैं गिरफ्तार करने? 2-3 आए, अच्छा खासा इंसान बिठाया, लेके चले गए, सब देखते रह जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, पूरा ट्रक तो नहीं आता, पूरी बस तो नहीं आती एक को गिरफ्तार करने के लिए, जबकि अच्छा खासा जवान है, कवि है, ताकतवर। 2 पुलिस वाले आए, उठाए, ले गए, तवज्जो। लेकिन जनाबे मीसम कैद खाने में, जंजीरों में भी जकड़े, कमजोर भी, लागर भी। लेकिन जब दरबार में बुलाया गया मीसम को तो 2-3 सिपाही नहीं गए, 40 लोग गए। क्यों? जानते थे मीसम का जिस्म कमजोर है, अकीदा थोड़ी ना कमजोर है। अली को बुलाएंगे तो अली मदद के लिए आ जाएंगे। आए 40 अफराद ने मीसम को पकड़ा, दरबार में लाए, जंजीरों में जकड़ा हुआ अली का शहदाई। तवज्जो चाहता हूं, मीसम दरबार में खड़े, इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डाले। इब्ने ज़ियाद मीसम को देख रहा है, मीसम इब्ने ज़ियाद को देख रहे हैं। एक सिपाही इतने में कहता है, मीसम तुमने अमीर को सलाम नहीं किया? मीसम ने घूर के देखा, अरे मेरा अमीर सिवाय हुसैन के और कोई नहीं है, तो मेरा अमीर अली है, अहले बैत है, कोई इनके अलावा मेरा अमीर नहीं। मीसम इब्ने ज़ियाद गैज़ में आ गया। मीसम तुम्हें पता भी है कहां खड़े हो? कहां पता है? नजिसुल आइन के नजिस दरबार में। पता है यही खड़ा हूं। कम मीसम जरा पीछे मुड़ के देखो। अब पीछे मुड़ के देखा तो तलवारें, खंजर, नेज़े, तबर, तीर। एक मरतबा मीसम देख के मुस्कुराने लगे। इब्ने ज़ियाद कहता है, क्या हुआ? तलवारें देख के क्या अक्ल भी खो बैठे? का अक्ल नहीं खो बैठे, तेरी हिमाकत पे हंस रहा हूं। का क्या हुआ? मुझ पर क्यों हंस रहा है? का ये सब क्यों इकट्ठा किया है मजमा? का एक इशारा होगा, तेरे सर का पता नहीं चलेगा। का तू और तेरी औकात के तू मुझे कत्ल करे? का क्या मतलब? का मेरा मौला कह के गया है कि मीसम तुम्हें सूली दी जाएगी, हाथ काटे जाएंगे, पैर काटे जाएंगे, जबान काट दी जाएगी। मीसम इब्ने ज़ियाद कहता, अच्छा तो तलवारें मेरी नहीं देख रहे? इतनी किताब का नाम है मीसम, तवज्जो चाहता। कब मीसम ये तलवारें नहीं देख रहे हो? का देख रहा हूं। का एक लम्हे इशारे की जरूरत है, सर कट जाएगा। का तेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है, इसलिए कि मेरे मौला ने जो कह दिया है वही होके रहेगा। का क्या कहा है? का हाथ काटे जाएंगे, पैर काटे जाएंगे, जबान काटी जाएगी, सूली दी जाएगी। जल्लाद को बुलाया, जाओ मीसम को लेके जाओ।
हाथ काटना, पैर काटना, सूली दे देना, जबान ना काटना, इसके मौला की बात को झुठलाना, जबान छोड़ देना। मीसा मुस्कुरा के निकले, कहा सुन, अली सिर्फ सादिक नहीं है, सिद्दीक भी है। सादिक और सिद्दीक में फर्क है। यहाँ मजलिस हो रही है, आप थोड़ी दूर रोड पे हाईवे पे निकले, पूछा किसी ने मजलिस हो रही है, आपने कहा हाँ हो रही, ये सादिक है आप, इसलिए कि सच बोला, हो रही थी, कह दिया। लेकिन आप जा रहे थे, मजलिस यहाँ शुरू भी नहीं थी, पूछा किसी ने मजलिस हो रही है, आपकी जबान से निकल गया हाँ हो रही है, तो होने लगे, ये है सिद्दीक, होने लगे, ये है सिद्दीक। अब समझे, सिद्दीक इसे कहते हैं कि ना भी हो तो होने लगे। अरे जन्नत में लिबास सिलने थोड़ी गए थे, सिद्दीका की जबान से निकल गया था। दर्जी आ गया बनके, रिजवान आ गया। तवज्जो, लिबास कहीं दर्जी क्या पढ़े नहीं थे, सिलने नहीं गए थे, सिद्दीका की जबान से। तो एक मर्तबा कहते हैं अली सिर्फ सादिक का नाम नहीं है, सिद्दीक भी है अली। तवज्जो चाहता हूं, कहा मैं तेरे मौला की बात तो झुठलाऊंगा, कहा हो ही नहीं सकता। कह के निकले, आए उसी दरख्त के पास कि जहां पे सूली देना था। आज भी सूली का कानून होता है, हाथ से मुराद पूरे हाथ नहीं काटे जाते, हाथ के गगे काट दिए जाते, पैर से मुराद पैर अलग नहीं किए जाते रगे, लेकिन कहा यही जाता कि हाथ पैर काटे गए। तवज्जो चाहता हूं, जनाबे मीसम के हाथ काटे गए, पैर काटे गए, सूली दे दी गई। अब जो सूली दी गई, चूंकि झुटलाना था उसके मौला को बात को, इब्न ज़ियाद को, लिहाजा जबान कहा था ना काटना, जबान छोड़ दी गई। जब इस अली वाले को सूली दी गई तो इसने दार को दार ही नहीं समझा, मिंबर बना लिया। क्या कहने, अब इसने मिंबर बना लिया, दार को दार ही नहीं समझा, मिंबर बनाया, सूली पर मीसम नया मिंबर, अजीब सा मिंबर। अली वाले ऐसे ही होते हैं ना। तवज्जो, अब एक मर्तबा मीसम कहते हैं कूफे वालों, आज अली वाला फजाइल सुनाने जा रहा है, जिसे आज नए मिंबर से नए फजाइल सुनना हो जाए। कूफे के लोग जूक दर जूक चले, पूरा मैदान भरा हुआ है, अली वाला दार को मिंबर बनाए हुए है, दार पे सब मीसम। अब तवज्जो, पूरा मजमा, ताहद्दे नजर मजमा, अब जनाबे मीसम फजाइल बयान कर रहे हैं, मेरा मौला ये है, मेरा मौला ये है, मेरा मौला ये है, मेरा मौला ये है, फजीलत बयान करते जा रहे हैं। और इब्न ज़ियाद के सिपाही भी सुन रहे हैं, मीसम सुना रहे हैं, फजाइल हो रहे हैं। एक मर्तबा मीसम कहते हैं, किताब का हवाला दे दिया, मीसम कहते हैं तुम जानते हो मेरे मौला मुझसे खास बात बता के गए हैं। कहा बताओ ना मीसम। आवाम कह रही है, पब्लिक कह रही है, सुनने वाले कह रहे हैं, सामाइन कह रहे हैं, मीसम तुम्हारे मौला ने तुम्हें क्या बात बताई है, बताओ तो सही, वो खास बात क्या है। कहा मेरे मौला हर एक के असली बात का पता देकर गए हैं। अल्लाह अकबर, मुझे नहीं मालूम आप कैसे सुनेंगे। मेरा मौला हर एक का असली बात बता के गया है। उसके बाद गिनाना शुरू किया, कहा देखो अब तो मैं जा रहा हूँ मरने के लिए, अली के पास जा रहा हूँ, मैं तुम्हें भी बता के जा रहा हूँ, फुला का बाप फुला नहीं है बल्कि फुला है, फुला का बाप फुला नहीं है बल्कि फुला है, फुला का बाप फुला नहीं है बल्कि फुला है, फुला का बाप फुला नहीं है बल्कि फुला है। मीसम सबके असली बाप बता रहे थे। इब्न ज़ियाद एक मर्तबा, इब्न ज़ियाद का दरबार सजा हुआ था ना, सिपाही भी सुन रहे थे, सिपाही दौड़ते हुए इब्न ज़ियाद के दरबार में आए। कहा अमीर, कहा क्या हुआ। कहा मीसम सबके असली बाप बता रहे हैं। कहा जल्दी करो, मीसम की जबान काट दो वरना मेरा भी असली बाप। गद्दार पे चढ़कर मीसम बोला, गद्दार पे चढ़कर मीसम बोला, अर्श से उठकर तारा बोला, अर्श से उठकर तारा बोला, कुरान का बारा खुलकर बोला, एक नारे हैदरी, साकी शराब सीरत किरदार दे हमें, लिल्ला साकी शराब सीरत किरदार दे हमें, पैमाना है बुलंदी अफकार दे हमें, लिल्ला जुरते रसनो धार दे हमें, जानी जबान मीसम तमार दे हमें, आयते
जली कर रहे हैं हम सागर उठा के मदे अली कर रहे हैं नारे हैदरी 4 पे चढ़ के अली वाला बोला ना, सब खामोश हो गए, कोई बोलने वाला नहीं। ज्यादा जल्दी जबान काटो, वरना मेरा भी राज फाश होने वाला है। जल्दी काट दो जबान। जल्लाद आया, मिशन में तब क्यों आए हो? का जबान काटने के लिए। कामिल से अपने जाके कह देना कि मेरा मौला झूठ नहीं बोलता। मजबूर हुए ना काटने का जबान। मेरे मौला ने आज तक झूठ नहीं बोला। अली इस जात का नाम। गुलामों को पहले समझिए, फिर अली तक आइएगा। अरे नबी खुद कह रहे हैं, या अली तुम्हें मैंने पहचाना है खुदा ने, और कोई जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं है। कैद भी लगा दी, मैंने या खुदा ने। इसका मतलब आदम भी नहीं जानते अली क्या है, मूसा भी नहीं जानते अली क्या है, ईसा भी नहीं जानते अली क्या है, इब्राहिम भी नहीं जानते कि अली क्या है, और हम कह रहे हैं कि अली की जात में गुलू हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम कह रहे हैं अली की जात में गुलू हो गया। अरे गुलू होने के लिए हद मुअय्यन करना पड़ेगी। आदम तो अली को समझ ना पाए, हम आदम से भी बड़े होने का दावा कर रहे हैं। अली की जात को समझिए, अली किसी आम जात का नहीं। बस अजीजों, किस शख्सियत का नाम है अली, किस जात का नाम, जिसने कभी कुछ नहीं मांगा। उस अली ने एक तमन्ना की, एक शुजा बेटे की। तवज्जो चाहता, शुजा बेटे, ऐसी शुजात कि एक मर्तबा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम